Good morning, student. Today we are discussing chapter first, class 10, life process. And इसके पहले काफ़ी टॉपिक डिस्कस हो चुके हैं. लाइफ प्रोसेस, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, कैरेक्टर्स. Then as the nutrition system in human being, nutrition are two type, autotrophic and heterotrophic. Then as the autotrophic nutrition are two type, first photosynthetic and second chemosynthetic. And heterotrophic nutrition are different type, parasitic, saprophytic, holozoic. Then as the human respiratory system, the respiratory system include the gases enter in the human body with the help of nostrils, nasal passages, bronchus, bronchioles, alveoli. The function of alveoli, it have the exchange of gases. Okay. Then as the starting as the unicellular, then plants, then as the animal, then as the human circulatory system, as the heart. Human heart present 4 chamber, fish heart present 2 chamber, amphibia 3 chamber, but exception reptiles. Reptiles heart present as the 4 chamber, like as crocodile, exception. Okay, so fish heart present 2 chamber, amphibia reptiles 3 chamber, but exception crocodile present 4 chamber, and human being present 4 chamber heart. And human heart has the 4th chamber, upper chamber auricles and lower chamber as ventricles. Then right atrium, right ventricles, left ventricles. Then as the new topic as the tubes. Tubes means blood vessels. Okay, blood vessels. And blood vessels include artery, veins and capillaries. And one question कि कंपेयर आप कैसे करें artery and veins में. तो as a artery carry blood heart to body organs. arteries का वर्क क्या है, ब्लड को हार्ट से कहाँ तक ले जाता है, बॉडी ऑर्गन्स. हार्ट से कहाँ पे पहुँचा रहा, बॉडी ऑर्गन्स. एंड आर्टरी कैरीज प्योर ब्लड. आर्टरी में ब्लड क्या होता है, प्योर. थर्ड, आर्टरी में जो ब्लड का फ्लो होता है क्या होता है आपका, विदाउट प्रेशर. तो यहाँ पे जो बोल सकते हैं यहाँ पे आर्टरी में बाल्ब सब्सेंट होते हैं, बाल्ब सब्सेंट. आर्टरी में क्या, बाल्ब्स absent, but exception pulmonary artery. Pulmonary artery, इसमें जो ब्लड होता है इम्प्योर होता है. बट जो आर्टरी होती है आर्टरी कैरी प्योर ब्लड. So it's the different points include as a artery. तो artery में क्या, artery transport blood heart to body organs, artery carry pure blood. इसको दोबारा मैं राइट कर दिया. artery carry pure blood, then bulbs absent artery, pulmonary artery carries impure blood. अब यहाँ पे एक रीज़न आता है कि pulmonary artery में जो blood impure क्यों होता है. तो इसका रीजन क्या है कि अपर क्या होता है, ऑरिकल्स, लोअर क्या होता है, वेंट्रिकल्स. तो जो राइट एट्रियम्स है वहाँ पे ब्लड होता है प्योर, और यहाँ से कनेक्टेड होती है पल्मोनरी आर्टरी. तो यहाँ से इम्प्योर ब्लड किस में जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी में. और वेन्स में जो ब्लड होता है इम्प्योर, बट जो पल्मोनरी वेन्स है उसमें ब्लड होता है प्योर.
वेन्स में यदि पॉइंट आते हैं तो एज अ वेन्स ट्रांसपोर्ट ब्लड हार्ट टू बॉडी ऑर्गन्स। ओके, आर्टरी यहाँ पे आर्टरी क्या करें, आर्टरी का वर्क क्या है, ब्लड को हार्ट से, तो यहाँ पे क्या आर्टरी एंड वेन्स, आर्टरी ट्रांसपोर्ट ब्लड हार्ट टू ओके बॉडी ऑर्गन्स एंड वेन्स ट्रांसपोर्ट ब्लड बॉडी ऑर्गन बैक टू द हार्ट। पूरी बॉडी का जितना भी इम्प्योर ब्लड है वो आपका कहाँ पे आता है, हार्ट में, विद द हेल्प ऑफ वेन्स। नेक्स्ट, पल्मोनरी वेन्स कैरी प्योर ब्लड, वेन्स प्रेजेंट valve and as the pulmonary veins carry pure blood, so it's the compare between artery and veins. Okay student, then as the artery are the vessels, arteries किसके टाइप से, vessels के, vessels में क्या था, artery, veins, capillaries, so arteries are the vessels which carry blood away from the heart to various organ of the body, means blood को हार्ट से बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन तक पहुंचाती है। सिंस द बॉडी मस्ट फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर, ब्लड का जो फ्लो होता है आर्टरी में वो हाई प्रेशर से होता है। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि गिव रीजन, जो आर्टरी में ब्लड का फ्लो अंडर हाई प्रेशर है, तो इट्स द रीजन बिकॉज आर्टरी absent valves and artery absent valves, so the blood flow under high pressure. Then artery have thick, arteries क्या होती है, thick होती है। तो यहाँ पे एक पॉइंट और भी आया, arteries क्या होती है, thick होती है। तो यहाँ पे आप क्या, यहाँ पे एक पॉइंट क्या जाएगा, arteries have thick elastic valves, valves क्या होती है, elastic। Then veins, veins collect the blood from different organs and bring its back to the heart। veins का वर्क क्या, बॉडी डिफरेंट ऑर्गन से ब्लड को कलेक्ट करना और कहाँ पहुँचा देना, हार्ट में। they do not need thick valves because the blood is no longer under high pressure। इसकी वाल्व थिक नहीं होती है क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड फ्लो होता है प्रेशर से नहीं होता। प्रेशर से क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंस क्या होते हैं, valves। Instead they have valve and that ensure the blood flow only in one direction। It is the importance of valve। What is the function of valve? The function of valve, it ensure the blood only one direction। Then on reaching an organ or tissue, the artery divides into smaller and smaller vessels। Arteries get divided small and smaller vessels to bring the blood in contact with all the individual cells। The smaller vessels have valves which are one cell thick and are called capillaries। में जो स्मॉल थिन सेल होती है इन्हें हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल between the blood and surrounding cell take place across these thin wall। The capillaries that join together to form veins, capillaries किससे join हो रही, vein से, that convey the blood away from the organ or tissue। So the blood vessels, it is three types, artery, veins, capillaries। तो blood vessels में क्या था, फर्स्ट क्या है arteries, सेकेंड क्या veins, थर्ड क्या, कैपिलरीज। आर्टरी कैरीज प्योर ब्लड, वेन्स कैरीज इम्प्योर ब्लड। आर्टरी ट्रांसपोर्ट ब्लड हार्ट टू बॉडी ऑर्गन्स, वेन्स ट्रांसपोर्ट ब्लड बॉडी ऑर्गन बैक टू द हार्ट। आर्टरी absent valves but veins present valves। The blood cannot flow under high pressure in artery but blood flow under high pressure, सॉरी इसमें क्या आ जाएगा, जो ब्लड का फ्लो आर्टरी में है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या, हाई प्रेशर, बट वेन्स में क्या है, ब्लड का जो फ्लो है एज द लो प्रेशर बिकॉज प्रेजेंस ऑफ वाल्व। कि यहाँ पे एक रीजन है, यहाँ प्रेजेंस होते हैं वाल्व्स।
ओके गाइस, अब यहाँ पे आता मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स। ब्लड में 3 सेल होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। फर्स्ट आरबीसी, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल, देन एज द प्लेटलेट्स। और प्लेटलेट्स का वर्क होता है क्लॉटिंग में। प्लेटलेट्स इट हेल्प द क्लॉटिंग। देन some condition, what happens if this system of tubes develop as the leak? Think about situation when we are injured, कभी कभी injured हो जाते हैं and start bleeding, naturally the loss of blood from the system, then loss of blood from the system, then sometime as the thin fibrous types of tissue, that it has the clotting of blood। सपोज बॉडी किसी पार्ट्स में इंजरी हो जाती है तो कुछ टाइम बाद देखते हैं वहाँ पे क्लॉटिंग हो जाती है, तो उससे क्या कि बॉडी का जो ब्लड है वो बॉडी से क्या होता है, वो फ्लो नहीं हो पाता। तो इसका मीन्स क्या है, इट प्रिवेंट क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ओके, सिचुएशन व्हेन वी आर इंजर्ड एंड स्टार्ट ब्लीडिंग, नेचुरली द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द सिस्टम हैज़ टू बी मिनिमाइज्ड। In addition, leakage would blood from system and lead to the loss of pressure, which would reduce the efficiency। तो यहाँ पे इसका मीन्स क्या है, जो ब्लड फ्लो होता है तो वहाँ पे क्या आ जाए, क्लॉट आ जाता है। टू अवॉइड दिस द ब्लड हैज़ प्लेटलेट सेल। ब्लड में क्या होती है, प्लेटलेट सेल। ध्यान रखिए, ब्लड में क्या है, प्लेटलेट सेल, तो इसका वर्क होता है क्लॉटिंग में। which circulate around the body and plug these leaks, the helping to clot the blood at this point of injury। सपोज बॉडी की किसी पार्ट इंजरी है, चोट लग जाती है तो वहाँ पे क्लॉटिंग हो जाती है, और उसके मीन से क्या होता है, ब्लड का फ्लो, जो फ्लो ब्लड आपका फ्लो हो रहा है वो फ्लो होना बंद हो जाता है। बॉडी आउटसाइड की बात हो रही है। ओके, तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस है प्लेटलेट्स का। अब आता है यहाँ पे लिम्फ। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे जो आएगा लिम्फ, और लिम्फ को बोलते हैं हम टिश्यू फ्लड। लिम्फ, और लिम्फ को क्या बोलेंगे, टिश्यू फ्लड। टिश्यू फ्लूइड। ओके, तो दिस इज द अनदर टाइप्स ऑफ फ्लूइड आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन। ये भी क्या कर रहा, बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन। ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सेकेंड लिम्फेटिक सिस्टम, एंड दिस इज कॉल्ड लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज and some amount of plasma, protein and blood cell escape the intercellular space in the tissue to form the tissue fluid or lymph. Then it is similar to the plasma. जो lymph होता प्लाज्मा की क्या होता है, सिमिलर। तो lymph is similar to the plasma of blood, but क्या होता है, colorless and contain the less protein। तो यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है, इसमें क्या होता है, प्रोटीन की क्वांटिटी क्या होती है, लेस। देन यहाँ पर लिम्फ्स का वर्क क्या होता है, लिम्फ का, तो लिम्फ ड्रेन्स इनटू द लिम्फेटिक कैपिलरीज। कहाँ पे, लिम्फेटिक कैपिलरीज फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेस विच ज्वाइन टू फॉर्म लार्ज लिम्फ वेसल्स दैट फाइनली ओपन इनटू द लार्ज वेन्स। दैट फंक्शन ऑफ लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट। तो यहाँ पे क्या है, लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन। कहाँ से, इंटेस्टाइन, एंड ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। तो इट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लिम्फ। ओके, अब यहाँ पे आता है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन प्लांट। एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन प्लांट्स include as the two type of tissue. First xylem and second point phloem. So xylem and phloem, it has the transportation, and transportation include as the transport of water, mineral and food material
one part of the cells to the another parts of body, and transportation of water with the help of xylem tissue. Then involved as the xylem present different types of elements, tracheids, bacills, xylem fiber, xylem parenchyma. These elements it help the transportation of water mineral. And phloem present different parts, sieve tube, companion cell, phloem fiber and phloem parenchyma. So that's the topic यहाँ पे है transportation. Transportation in plant. Transportation means substance are transport from one part of the body to the another parts. Okay, so substance are transport one part of the body to the another part, it is called transportation. Then involve as the यहाँ पे जो main किसका importance होता है, तो यहाँ पे होता है xylem का. Okay, so we have discussed how plants take in simple compound such as carbon dioxide and photosynthesis energy stored in their chlorophyll containing organs. और chlorophyll containing organs क्या होता है, leaves. Then other kinds of raw material needed for building plants bodies we also have to taken up separately. For plants the soil is the nearest and जो ज़्यादा sources होता है richest sources of raw material like nitrogen, phosphorus, other minerals. The absorption of these substances therefore occurs through the parts in contact with the soil. और यहाँ पे जो soil से contact होता है वो क्या होता है, root. Okay, if the distance between the soil containing organs and chlorophyll containing organs are small, ये distance small है, so energy and raw material can easily diffuse. तो उस condition में जो process involve होगी diffusion, यदि जो distance है क्या small, but if the distance become large, so because of changes the plant body design, diffusion process will not be sufficient. So diffusion process sufficient, it is depend size of body. If size of body as a small, yeah, if distance becomes small, so diffusion process occurs. But if the size of body become large, so diffusion process cannot sufficient. So diffusion process will not be sufficient to provide a raw material in leaves and energy in root. A proper system of transportation is therefore essential in such condition. Energy need differ between different body design. Plant do not moves and plant bodies have to large proportion of dead cells in many tissue. As a result, plant have low energy need. Plants से generally energy required क्या हो रही है, यदि condition क्या low है, can use relatively slow transportation. यदि energy कम है तो transportation क्या slow होगा, but यदि energy ज़्यादा है तो उस condition transportation क्या होगा, more ज़्यादा होगा. The distance over which transport system have to operate, however, can be very large in plants such as very tall tree. Plant transportation system will move energy store from leaves and raw material from root. जो यहाँ पे बोल सकते हैं एनर्जी कहाँ पे स्टोर है, लीव्स में, और जो रॉ मटेरियल कहाँ पे है, फ्रॉम द रूट. These two pathways are constructed as independently organized conducting tubes on the xylem. कौन सा टिश्यू, xylem, moves water minerals obtained from the soil, and other hand phloem transport product of photosynthesis from leaves to different parts of plant body. तो यहाँ पे जो टिश्यू है xylem and phloem. So as a these two tissue, first xylem and second point phloem tissue. एंड इसमें कुछ पार्ट भी होते हैं. xylem में क्या, ट्रैकिड्स, वेसिल्स, xylem फाइबर
and last xylem parenchyma. Then as the transport of water. Transport of water. यहाँ पे क्या बताया, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर विद द हेल्प ऑफ बेसिल्स. एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, देन हैज मोर अपडेट. माई लिंक डॉक्टर आशीष सक्सेना. सब्सक्राइब द बटन. ओके स्टूडेंट. So as the transport of water in xylem tissue, vessels and tracheids. First point vessels and second point tracheids. Bases and tracheids of the root, stem and leaves are interconnected. ये आपस में क्या होती है, interconnected to form continuous system of water conducting channel reaching all parts of the plant. तो means bases and tracheids, these are interconnected. And basils and tracheids, it is the element of xylem tissue. ये element किसके हैं, xylem tissue. First basils, second point tracheids. At the root, cells in contact with the soil actively taken up ions. यहाँ पे जो movement क्या हो रहा है, ions. This create a difference in their concentration of these ions between the root and soil. यहाँ पे क्या डिपेंड करा, concentration of these ions between the root and soil. Water therefore moves into the root from the soil. To eliminate this difference, this means that there is steady movement of water and water into root xylem, creating columns of water. This is the steady pushed upward. Means यहाँ पे क्या जो movement condition हुई है, ion moves, जो आयनिक मूवमेंट्स है या आयंस को ऊपर की मूवमेंट किया जा रहा है. दिस प्रेशर बाय इटसेल्फ टू अनलाइकली टू बी द इनफ टू मूव वाटर ओवर द हाइट दैट वी कॉमनली सी इन प्लांट्स. प्लांट यूज एंडलेस स्टेजेस टू मूव वाटर इन द xylem अपवर्ड टू द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द प्लांट बॉडी. तो इट इज डिपेंड एज द पुशिंग मूवमेंट. Then provide that the plant has the adequate supply of water. The plant which is lost water through the stomata is replaced by water from xylem basils. इसको फिर से replace किससे कर दिया जाता, from the xylem basils in the leaf. In fact, evaporation of water molecules from the cells of leaf create the suction which pull water from the xylem cell of root. The loss of water in the form of vapor from the area parts of plant, this process it is called transpiration. Transpiration. Loss of water in the form of water vapor as the area parts of plant, this process it is known as transpiration. Okay student, कोई डाउट हो मैसेज कीजिए. तो ट्रांसपिरेशन मीन्स लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियर पार्ट्स ऑफ प्लांट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल डिजॉल्व फ्रॉम रूट टू द लीव्स. इट इज आल्सो हेल्प इन द टेम्परेचर रेगुलेशन. सपोज यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन, तो इट मेंटेन द ये क्या मेंटेन करा, टेम्परेचर रेगुलेशन. द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज मोर इम्पोर्टेंट एट नाइट. नाइट में प्रोसेस क्या होती है ज़्यादा, ड्यूरिंग द डे व्हेन द स्टोमेटा आर ओपन. डे टाइम स्टोमेटा क्या होते हैं, ओपन, बट नाइट टाइम स्टोमेटा क्या होते हैं, क्लोज. द ट्रांसपिरेशन पुल बिकम द मेजर ड्राइविंग फोर्स द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द xylem टिश्यू. तो यहाँ पे जो मेन इम्पोर्टेंट क्या है, ट्रांसपोर्टेशन. और ट्रांसपोर्टेशन का मेन यहाँ पे इम्पोर्टेंस क्या है, टेम्परेचर रेगुलेशन. तो यहाँ पे आप क्या राइट कर सकते हैं, इट मेंटेन द टेम्परेचर रेगुलेशन. तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए, मैंने आज क्या बताया आपको, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, प्लाज्मा, लिम्फ, ट्रांसपोर्टेशन प्लांट, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर. देन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस होता है इससे जाइलम्स की
पार्ट में बेसिल्स एंड ट्रैकिड्स। फर्स्ट क्या होता है बेसिल्स और सेकेंड क्या होता ट्रैकिड्स। इसके बाद जो आया ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस, तो यहाँ पे आ जाएगा फ्लोएम। फ्लोएम इट हैव द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल। और यहाँ पे एक पॉइंट है ट्रांसलोकेशन, ठीक है। ट्रांसलोकेशन मीन्स ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल लीव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट। दिस प्रोसेस इट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। इसे हम क्या बोलेंगे ट्रांसलोकेशन। और यहाँ पे जो इन्वॉल्व होगा सीप ट्यूब, कॉम्पेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या सीप ट्यूब, सेकेंड कॉम्पेनियन सेल, थर्ड फ्लोएम फाइबर, लास्ट फ्लोएम पेरेन्काइमा। ओके, इसके अलावा मैंने एक पॉइंट और बताया था, द साइज ऑफ प्लांट बॉडी है द डिस्टेंस बिटवीन स्मॉल, यदि डिस्टेंस स्मॉल है रूट से लीव्स तक की, तो वहाँ पे डिफ्यूजन प्रोसेस सफिशिएंट होगा। बट इफ डिस्टेंस बिकम मोर या लार्ज, ये डिस्टेंस लार्ज है तो उस कंडीशन डिफ्यूजन प्रोसेस कैन नॉट सफिशिएंट। सो इन दिस कंडीशन रिक्वायर्ड एज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ टिश्यू एंड दिस टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम। कौन कौन से जाइलम एंड फ्लोएम। और यहाँ पे जो इन्वॉल्व होगा ट्रैकिड्स, बेसिल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पेरेन्काइमा। किसके पार्ट दिए जाइलम के। और फ्लोएम में क्या आ जाएगा सीप ट्यूब, कॉम्पेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा। ओके गाइस। और इसके अलावा यहाँ बताया ट्रांसपिरेशन, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसपायरेशन मीन्स जो एक्स्ट्रा वाटर मॉलिक्यूल्स है इसका प्लांट के आउटर पार्ट से रिमूव हो जाना, लाइक स्टोमेटा एंड लेंटिकल्स। एंड ट्रांसलोकेशन मीन्स ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। दिस प्रोसेस इट इज नॉन एज ट्रांसलोकेशन। ओके, बाकी टॉपिक स्टार्ट नहीं किया, आप लोग स्टडी करते रहिए। न्यूट्रिशन बताया था, देन न्यूट्रिशन प्रोसेस, रेस्पिरेशन सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन हार्ट। ये टॉपिक कंप्लीट कीजिए, कॉपी में आप लोग राइट कर लीजिए। और आज जो मैंने आपको 2-3 टॉपिक आपको बताया, फर्स्ट क्या बताया मैंने ट्यूब्स। ट्यूब्स में क्या आता है आपका द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में क्या आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज। कंपेयर बिटवीन आर्टरी एंड वेन्स। देन एज द कैपिलरीज, देन एज द प्लेटलेट्स। Importance of platelets, it have the clotting of blood as the outside, suppose outside as the injury, okay, so it prevent clotting of blood, okay, so it prevent clotting of blood. Then as the lymph, it is also called tissue fluid. Then as the plasma, lymphatic system. देन इसके पहले एक टॉपिक मैंने बताया बीपी। बीपी मीन्स होता है ब्लड प्रेशर। एंड ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर। तो एज द स्फिग्नोमैनोमीटर इट मेजर ब्लड प्रेशर एंड नॉर्मल ब्लड प्रेशर 80 to 120 mmHg एंड इट्स इंक्लूड एज द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। सिस्टोलिक प्रेशर ज़्यादा होता है 120 एंड डायस्टोलिक मीन्स एज द लो होता है रिलैक्सेशन, ये 80 होता। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ओके। हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर एंड एज द लो ब्लड प्रेशर। सो एज द हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, लो ब्लड प्रेशर, हाइपोटेंशन। आप लोग अपने डाउट बताते रहिए और जहाँ भी डाउट है मैसेज कीजिए। और जाइलम फ्लोएम उस कंडीशन में वर्क करते हैं जब बोल सकते हैं द साइज द डिस्टेंस बिटवीन रूट टू लीव्स एज अ बिकम लार्जर देन इन्वॉल्व एज अ कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ टिश्यू। दिस टिश्यू इट इज कॉल्ड जाइलम एंड फ्लोएम। इन्हें हम क्या बोले जाइलम एंड फ्लोएम। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए इस चैप्टर का लाइफ प्रोसेस। एंड लाइफ प्रोसेस मीन्स द सिस्टम मेंटेनिंग योर बॉडी। द सिस्टम मेंटेनिंग योर बॉडी इट इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। टॉपिक कंप्लीट हुए, इसमें हार्ट का आप डायग्राम बना लीजिए। इसके अलावा
एनसीईआरटी बुक में ही दिया पेज नंबर 107 में, वहाँ पे क्या दिया ब्लड प्रेशर, और वहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट दिया स्फिग्नोमैनोमीटर, इसका भी डायग्राम कॉपी में आप लोग बना लीजिए। ओके स्टूडेंट, और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दिए, जिससे आपको अपडेट मिलती रहेगी। ओके गाइस, थैंक यू।